کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خوفزدہ ہوں؟ اس نے میرے کہکے کا برا مان کر قدرے ترشی سے سوال کیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ہنسی اس بات پر آئی ہے کہ جو نکتہ تمہارے ذہن میں اب آیا ہے اس پر میں گھر سے نکلتے ہوئے غور کر چکا ہوں۔ ہمارا مشن واقعی خطرناک ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ میری طرح تم بھی بے خوف ہو کر خطروں میں کود پڑنے کے عادی ہو۔ آدمی کا حوصلہ بلند ہو تو کامیابی خود بخود قدم چومتی ہے۔ اس وقت مقابلے میں دو حریف ہیں، ایک طرف سوبراج اور دوسری طرف جلال۔ دونوں کے آدمی اندھیرے میں ایک دوسرے کی گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم دونوں کی حیثیت قربانی کے بکروں جیسی ہے۔ جب تک تم وہاں جا کر روشنی کے مخصوص اشارے نہیں کرو گے، دونوں فریق خاموشی سے اپنی کمین گاہوں میں دب کے بیٹھے رہیں گے۔ کبھی کبھی قربانی کے بکرے قصاب کو ٹکر بھی مار دیتے ہیں۔ آج یہی کرنا ہوگا، مگر اپنے ہاتھ پیر بچا کر۔ اندازے کی کوئی غلطی ہوئی تو ہم بے موت مارے جائیں گے، اس نے کسی فکر اور تشویش کے بغیر کہا۔ تاریک سڑک پر گاڑی کا سفر جاری رہا۔ اس وقت کراچی سے ہب جانے والی ٹریفک سرے سے مفقود تھی۔ ہمارے آگے اور پیچھے سڑک دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ البتہ ہب کی جانب سے کراچی جانے والی گاڑیوں کی بہتات تھی۔ مزار والی پہاڑی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں پہلے بھی وہاں ایک مارکے سے دو چار ہو چکا تھا۔ دور ہی سے پہاڑی کی چوٹی پر روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ شہر سے دور افتادہ ویرانہ تھا۔ لوگ وہاں آئے تھے تو قرب و جوار میں ان کی گاڑیوں وغیرہ کو بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ میں اپنی جگہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی سمت میں جاتے ہوئے چڑھائی کے ساتھ سڑک بھی خمدار تھی۔ اول خان نے گاڑی کی رفتار کم کر لی۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس کا انعکاس دونوں سمتوں میں کافی دور تک پھیل رہا تھا۔ میں اس سے بھی آگے پھیلی ہوئی گھور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن مجھے کہیں کسی گاڑی کی پرچھائی تک نظر نہیں آئی۔ یہاں تو ہر طرف لامتلاحظ سناٹے کا راج ہے، کہیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ اول خان نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اسی وقت مخالف سمت سے آتی ہوئی ایک کوسٹر کی روشنی سڑک کے خم کی وجہ سے پہاڑی کے دامن میں پڑی تو بس لمحہ بھر کے لیے مجھے کم از کم دو گاڑیوں کے چمکتے ہوئے ہیولے نظر آئے جو اگلے ہی لمحے معدوم ہو چکے تھے۔ موڑ گھومتے ہوئے کوسٹر کا رخ تیزی کے ساتھ بدلا تھا اور اسی کے ساتھ پہاڑی کا دامن پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ ابھی مجھے اس طرف دو گاڑیاں نظر آئی ہیں، میں نے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ سوبرائی یا اس کے آدمی پہنچے ہوئے ہیں، اول خان بولا۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جلال کے آدمی فقیروں وغیرہ کی حلیے میں آئے ہوں گے، ایسے تہی 10 لوگ گاڑیوں سے اترتے تو اسی لیے میں مار دیے جاتے۔ ہم اس مقام کا جائزہ لیتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس وقت مجھے جلال کے آپریٹرز کا خیال آیا اور میں نے اسے آن کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ لاسلکی آلے پر بس لمحہ بھر کے لیے ریڈیائی شور برقرار رہا، پھر وقفے سے کئی انسانی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے ناقابل فہم انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ مانوس تھے مگر فکرے محمل معلوم ہو رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اردو اور انگریزی کے ملے جلے الفاظ کو کوڈ ورڈز کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے آپریٹرز کے احاطۂ عمل کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ کہاں تھے، اپنے مورچوں پر پہنچے تھے یا نہیں، یا وہاں تک جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ریڈیائی لہروں کی وجہ سے آوازیں اتنی بگڑی ہوئی تھیں کہ انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود میں ان میں جلال کی آواز نہیں پہچان سکا۔ آخر میں نے براہ راست اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بار سکون طاری ہوتی آپریٹرز اٹھا کر اس کا بٹن دبایا اور جلال کے لیے اپنا پیغام نشر کر دیا۔ چیف کالنگ۔ فوری طور پر اس کی طرف سے جواب آ گیا۔ اس کی آواز اتنی بدلی ہوئی تھی کہ اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم بے فکر رہو، میرے 3 آدمی اوپر پہنچ چکے ہیں، میں کچھ لوگوں کے ساتھ نیچے موجود ہوں۔ ہم نے دامن میں ان کی 2 گاڑیاں دیکھ لی ہیں، وہ ہم سے پہلے سڑک کی سمت سے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کچے راستے سے پہاڑی کے پچھلے حصے میں آئے تھے اور میں وہیں ہوں۔ تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ جلال کا پیغام سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے فوری طور پر جواب دیا، ہم سڑک سے جائزہ لیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، چند منٹ بعد واپس لوٹیں گے۔ ان کی 2 گاڑیاں پل بھر کے لیے مجھے بھی نظر آئی ہیں، لیکن ان کی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے۔ اوور۔ میرے اوپر والے آدمیوں نے اپنی انفراریڈ دوربینوں سے انہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ اوپر سے بالکل بے پرواہ ہیں اور اپنی گاڑیوں کے عقب میں چل پھر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے اور ان میں لنگڑانے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند منٹ بعد یہ پھیلنا شروع کر دیں۔ دعا کرو کہ یہ اسی جگہ جمع رہیں، کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اوور۔ لنگڑا نہیں ہے، میں نے مایوسی سے دہرایا۔ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری لمحات پر پہنچے۔ اوور۔ مجھے بھی اسی کا انتظار ہے، حالات پوری طرح میرے کنٹرول میں ہیں۔ اوور۔ تمہیں یقین ہے کہ ان اطراف میں ان کا کوئی 8واں آدمی موجود نہیں ہے؟ اوور۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لوگ پہلے سے یہاں آئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 آدھ آدمی ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ اوور۔ پھر 9 بجے کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساتوں کو اسی وقت کیوں نہیں گھیر لیتے؟ اوور۔ میں نے فوری خیال کے تحت کہا۔ یہ خیال آیا تھا لیکن میں لنگڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، آج کا بڑا شکار وہی ہے۔ اوور۔ جلال نے سوبراج کا نام لیے بغیر جواب دیا۔
ऑपरेटर्स पर होने वाली गुफ्तगू उसके दूसरे आदमी भी अपने अपने ट्रांसमीटर पर सुन रहे थे, इसलिए जलाल बेतकल्लुफी से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे इस बात का अंदाजा था, मैं भी इससे मोहतात रहकर बात कर रहा था ताकि उसे अपने मातहतों के सामने किसी सुबकी का सामना न करना पड़े। गुफ्तगू में वक्फा आते ही अचानक किसी और ने बोलना शुरू कर दिया। इस बार मैंने अंदाजे की गलती नहीं की। बोलने वाले को जलाल ने मानूस अल्फाज लेकिन नाकाबिल फहम फिक्रों में जवाब दिया था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो दखल अंदाजी किसी इमरजेंसी के मजहर थी। अव्वल खान गाड़ी को इतनी दूर तक लेता चला गया कि तयशुदा पहाड़ी तक वापस पहुंचने में वक्त पूरा हो जाए। उसे वापसी के लिए गाड़ी घुमाई तो 9 बजने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। ऑपरेटर्स पर मुख्तसर वक्फों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। पहाड़ी के करीब पहुंचने पर मैंने मौका पाते ही जलाल को बताया कि हम किसी भी लम्हे वहां पहुंचने वाले थे। जलाल ने मुझे ग्रीन सिग्नल देते हुए बताया कि लंगड़ा इस वक्त तक वहां नजर नहीं आया था। इसके भेजे हुए आदमी मुझसे 3 सड़क की तरफ बढ़ गए थे। 4 अफराद बदस्तूर गाड़ियों के अक्कम में मौजूद थे। अव्वल खान ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करके अपने पायदान में रखी हुई छोटी खुदकार राइफल की पोजीशन दुरुस्त की और फिर रफ्तार बढ़ा दी। चंद लम्हों बाद हमारी गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से सड़क से उतरी और नाहमवार पथरीली जमीन पर हचकोले लेती हुई पहाड़ी के दामन की तरफ बढ़ी तो हमारे सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारी गाड़ी के हेडलैम्प्स का रुख उसी समत में था जहां मैंने हरीफों की 2 गाड़ियां देखी थी। वो लोग कच्चे रास्ते पर काफी दूर चले गए थे। हमारी गाड़ी की भरपूर रोशनी वहां तक नहीं साथ दे सकी थी, लेकिन इसके इनिकास में इन दोनों गाड़ियों के हेवले नजर आना शुरू हो गए थे। अव्वल खान ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मैंने ऑपरेटर साफ करके जेब में डाल लिया। तारीकी में डूबे हुए सनग्लास वेराने में मुझे कोई मुतनफ्फिस नजर नहीं आया था। अव्वल खान ने सोबराज की हदायत के मुताबिक 2 मरतबा हेडलैम्प्स जलाकर बुझा दिए। इसीलिए मैं सामने से किसी टार्च की रोशनी चमकी और मातूम हो गई। मैंने झुककर अपने पायदान से राइफल उठा ली। अव्वल खान भी किसी अचानक उफ्ताद के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैं सामने फैले हुए गहरे अंधेरे में नजरें जमाए बैठा रहा। आखिरकार मुझे पहाड़ी के पेश मंजर में एक मुतहर्रिक इंसानी हेवला नजर आया जो छोटे छोटे बेआवाज कदमों से हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था। ये तो अकेला है, जलाल ने 3 बताए थे। अव्वल खान ने जेरे लब सरगोशी की। हो सकता है कि वो पीछे रुक गए हों, मैंने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। फिजा पर छाए हुए गहरे और पुरहोल सकूत में वो मुतहर्रिक इंसानी हेवला करीब आया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में क्लाशनकोफ दबी हुई थी। वो जो कोई भी था बहुत बेजिगर था या फिर बरले दर्जे का गधा था। उसे ये खौफ नहीं था कि आने वाला उसे अपनी गोली का निशाना भी बना सकता है। वो इंतहाई मखदूज पोजीशन में यूं बेफिक्री से चला रहा था जैसे उसे हम दोनों की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। इस वक्त मेरे ज़हन ने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। 2 गाड़ियों में सवार होकर 7 अफराद के आने का मतलब था कि वो हर किस्म का मुकाबला करने की तैयारी करके वहां पहुंचे थे। इन्हें अंदाजा था कि किसी तसादुम की सूरत में नियाची हथियारों के साथ अफरादी कुव्वत की जरूरत भी पेश आ सकती है। ऐसी मखदूज सूरत हाल में क्लाशनकोफ बरदार का बेखौफी से बढ़ते चले आना बहुत गैर फितरी महसूस हो रहा था। मैं सांस रोके इसके करीब आने का इंतजार करता रहा। शायद उसे भी तवक्का थी कि जब तक कोई खड़बड़ न हो उसकी जान को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। मेरी और अव्वल खान की निगाहें उस पर मरकूज थीं। उसके बकिया 2 साथियों का कहीं पता नहीं था। अचानक वो सीने के बल जमीन पर गिर गया। इस वक्त वो हमारी गाड़ी से कई गज दूर था। खतरा भांपकर मैंने पायदान से राइफल उठाने का इरादा किया ही था कि अचानक खुली हुई खिड़की में से एक सर्द आईनी नाल मेरी खोपड़ी से आ लगी और मैं अपनी जगह पर जम कर रह गया। मैंने कन्नकियों से देखा कि अव्वल खान की पोजीशन मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। इस तरफ भी एक राइफल बरदार मौजूद था जिसने उसकी खोपड़ी का निशाना लिया हुआ था। बेख्तियार मेरे सीने से गहरा सांस आजाद हो गया। इन लोगों ने हमें अपने जाल में फांसने के लिए एक जबरदस्त नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था। 3 की वो टुकड़ी अपने साथियों से अलग होकर हमारी तरफ आई तो सामने से आने वाले ने दानिस्ता अपनी रफ्तार धीमी रखकर हमें पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। हमें हर हाल में इस पर निगाह रखनी थी। हम इसके पेशकदमी का मुशाहिदा करते रहे और इसके दोनों साथी गहरी तारीकी में एक लंबा चक्कर काट कर हमारे पीछे से नमूदार हो गए। वो बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। हम दोनों में से कोई भी असलहा बरदारों की मर्जी के खिलाफ कोई हरकत करता तो पल भर में उसका भेजा उड़ सकता था। सामने से आने वाला अपने दोनों साथियों को हमारी गाड़ी के पहलुओं की तरफ बढ़ता हुआ देखकर चंद सेकंड के लिए पोजीशन लेता हुआ जमीन पर गिरा था। जब उसने अंदाजा लगा लिया कि उसके साथियों ने चीते किसी आयारी और खामोशी से हमें अपनी जद पर ले लिया है तो वो भी अपनी क्लाशनकोफ तान कर फुर्ती से सीधा खड़ा हो गया। वो सातों 2 टुकड़ियों में बैठे तो जलाल के आदमियों की दूरबीनों की जद में थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि अपनी गाड़ियों से इतनी दूर निकल आने के बाद वो देखे जा रहे थे या नहीं। मेरे ज़हन पर बेयकीनी की वो लहर बस लम्हा भर के लिए छाई रही। बेख्तियार मेरी निगाहें पहाड़ी की चोटी की तरफ उठ गईं जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मजार और उसकी रोशनी इस पहाड़ी की ढलानों की अक्कम में ओझल हो चुकी थी। जलाल वहां सिर्फ सोबराज को मारने या पकड़ने के इरादे से नहीं आया था।
इसका अवलीन मकसद हम दोनों की हिफाजत करना था। वो इस फर्ज से पल भर के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता था। इसकी दी हुई इत्तला के मुताबिक इसके 3 आदमी भेस बदल कर पिछले हिस्से से इस पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे। वह हथियारों के अलावा अंधेरे में दूर तक देख लेने वाली इंफ्रारेड दूरबीनों से भी लैस थे। वो 3 थे तो एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ समतों की देखभाल कर सकते थे। ये जरूरी नहीं था कि वो तीनों सोबराज के भेजे हुए आदमियों में उलझे हुए हों। जलाल को इल्म था कि हम दोनों को ठीक 9 बजे सड़क के रास्ते से वहां पहुंचना था। राब्ते के आखिरी लम्हात में उसका कहा हुआ यह फिक्रा मेरे ज़हन में गूंजा कि सूरत हाल उसके कंट्रोल में थी और हम बेफिक्र होकर मुकर्ररा जगह पर पहुंच सकते थे। उसने यकीनी तौर पर अपने किसी आदमी को इस सिमत की देखभाल पर मामूर किया हुआ था। मेरा ऑपरेटर्स बंद पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तवक्का थी कि इस वक्त चोटी पर बैठा हुआ कोई न कोई शख्स जलाल को नीचे के पल पल के हालात से आगाह कर रहा होगा। इस बार सामने वाला बहुत तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ आया और चंद कदम दूर से ललकार कर बोला, अपना नाम बोलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोबराज से तय होने वाले कोड वर्ड्स के तबादले के बगैर मैं एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकालना चाहता था। राइफल की नाल मेरी कनपट्टी पर रखी हुई थी, जबकि जलाल और उसके आदमी मुझसे बहुत दूर थे। मेरी किसी भी इस तरारी हरकत के नतीजे में चश्मे ज़दन में मेरा काम तमाम हो सकता था। जब तक जलाल के आदमी हरकत में आते, मैं इनकी किसी मदद की जरूरत से यकसर बेनियाज हो चुका होता। सामने वाले ने शायद मेरा इम्तिहान लेने के लिए मेरा नाम पूछा था। अपने दबे दबे चिपटे खदोखाल और लहजे के बिना पर वो मकामी नजर नहीं आ रहा था। छोटे कद, चौड़े शानों और भरे भरे जिस्म की वजह से वो भारतीय गुजरात के किसी साहिली इलाके का बाशिंदा मालूम हो रहा था। राम, मेरे खामोश रहने पर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर मार कर जोर से कहा। इसी के साथ उसने अपनी क्लाशनकोफ की नाल मेरी तरफ सीधी कर ली थी। रावण, मैंने मशीनी अंदाज में बिला तामुल जवाब दिया। गुडी गुड, उसने जाहिलों वाले अंदाज में कहा। तुम दोनों साला नीचू उतरो। वो उसका हुक्म था। मेरी कनपट्टी से सर नाल हट गई। इस वक्त तक इन तीनों में से किसी को यह अंदाजा नहीं हो सका था कि हमारी गाड़ी में हथियार भी मौजूद थे। मेरे लिए वो कुछ कर गुजरने का अकलौता मौका था। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि शराफत से नीचे उतरने के बाद मैं इनके सामने भी बस हो जाऊंगा। बाद में जलाल के आदमी इनका जो हशर करते सो करते, मगर इससे पहले मेरा खात्मा हो जाता। दूसरी तरफ मुझे अव्वल खान की जान की फिक्र थी। इसकी पोजीशन मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। इन नाजुक लम्हात में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। मैं उसे नजरअंदाज करके अपने मौका को देखकर कोई कार्रवाई कर बैठता तो शायद मैं बच जाता, मगर अव्वल खान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। तारों भरे आसमान के नीचे घुप अंधेरे में वो आसाब शिकन खेल जारी था। गनीमत यह था कि मुसल्ला बदमाशों की सैन नफरी टोली ने सिर्फ एक मरतबा अपनी टार्च चमकाने के बाद दोबारा किसी किस्म की रोशनी नहीं की थी। इन्हें अंदेशा रहा होगा कि सड़क से गुजरने वाले किसी भी गाड़ी के सवार इस वीराने में रोशनी देखकर इधर का रुख कर सकते थे। मैंने तारीकी से फायदा उठाकर अपनी निशिस्त में पहलू बदलते हुए अव्वल खान को होले से कोनी मारी और दाहिने हाथ में राइफल संभालते हुए दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतरा। सामने वाला फातियाना अंदाज में गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था। मुझे अपनी जद पर लेने वाले ने मुझे नीचे उतरने के लिए जगह दे दी थी। मैंने गाड़ी से नीचे उतरते ही अपने हल्की सी चीख की आवाज निकाली। मेरे सामने वाले की तवज्जो लम्हा भर के लिए जमीन की तरफ मबजूल हुई और मैंने अपनी राइफल की नाल पूरी कुव्वत से उसके पेट के निचले हिस्से में घुसा दी। वो कयामत के लम्हात थे। मेरा हरीफ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। एक बेसाख्ता चीख के साथ उसकी राइफल हाथ से निकल गई और मैंने बहुत तेजी से अपनी राइफल का ट्रैगर दबा दिया। वो इन लम्हात में जमीन बोस होने के तेज अमल से गुजर रहा था। मेरी राइफल की गोली तेज तरीन रफ्तार से उसके जिस्म के आर पार गुजर गई और फिजा उसकी दिलदोज चीख से लर्ज उठी। वो खड़ा हुआ था। मैं कार के नीचे से उठकर उस पर हमला आवर हुआ था। इससे मेरी राइफल की नाल का रुख ऊपर की तरफ था। मुझे कामिल यकीन था कि वो गोली उसके पेट में घुसकर सारे आज़ाए रईसा को चीरती फाड़ती हुई उसके शानों के करीब से निकली होगी। इन्हीं लम्हात में अव्वल खान शायद अपने हरीफ से लिपट गया था। मेरी अचानक चीख ने चंद सानियों के लिए इन तीनों को बौखला दिया था और इनके कुछ समझने से पहले मुझे और अव्वल खान को हरकत में आने का मौका मिल गया था। 3 में से 2 ज़ेर हो चुके थे या होने वाले थे। सामने वाला खतरा भांपते ही दोबारा जमीन पर लेट गया। इसने मेरी तरफ पै दर पै 3 गोलियां चलाई, मगर मैं अपने मद्दे मुकाबल को ढेर करते ही सीने के बल जमीन पर गिर चुका था। सख्त संगरेजों की चुभन से मेरे सीने में खासी तकलीफ हुई, मगर सामने से आने वाली 3 गोलियां मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ऊपर से गुजर गईं। मैंने लेटे लेटे तीसरे की पोजीशन का जायजा लेना चाहा। मुझे तवक्का थी कि वो फायर करते किसी और तरफ रेंग गया होगा। इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना बेसूद था। मुझे कहीं भी उसका साया तक नजर नहीं आया। मुझे डर था कि कहीं वो अव्वल खान को अपना निशाना न बना ले। मैंने अपनी राइफल की नाल सीधी की और उसे जुम्बिश देते हुए तड़ातड़ तकरीबन आधा मैगजीन खाली कर दिया। फायरिंग की बाज गश्त में चीख तो दरकिनार को इंसानी कराह भी सुनाई नहीं दी। फिर वहां कयामत से बर्पा हो गई।
पहाड़ी की चोटी पर से राइफलों के नगमे गूंजने लगे। कहीं दूर से पै दर पै कई लर्जाखेज इंसानी चीखें सुनाई दी। फिर करीब से एक होलनाक चीख उभरी। मुझे गुमान हुआ कि मेरा तीसरा हरीफ भागते हुए किसी गोली का निशाना बन चुका था। वो सब कुछ चश्मे ज़दर में तकरीबन एक साथ होता चला गया। जलाल के आदमियों को इंफ्रारेड दूरबीनों की मदद हासिल थी। वो निशाने ताक कर बुलंदी से आग बरसा रहे थे। इनके हरीफ नशेब में इनके खुले निशाने पर थे। इनका बुरे अंजाम से बचना नामुमकिनात में से था। मैंने एक लम्हे के लिए किसी मुतवक्का खतरे का इंतजार किया, फिर दौड़कर अपनी गाड़ी के आगे से होता हुआ अव्वल खान वाली समत में पहुंचा तो वहां एक रूप फरसा मंजर मेरा मुंतजिर था। अव्वल खान रिटायर्ड फौजी और तरबियत याफ्ता कमांडो था। इसने अपने हरीफ को कार के खुले हुए दरवाजे के करीब जमीन पर गिराया हुआ था और उसके सीने पर सवार होकर मुक्कों से उसका चेहरा बिगाड़ने में मसरूफ था। इसका हरीफ बेदस्तों पा होकर घुटी घुटी आवाज में चीख रहा था। उसे अचानक नमूदार होकर अव्वल खान की खोपड़ी का निशाना लिया था। वो तमाशा देखते ही मेरा खून खोल उठा। मैंने बढ़कर अपनी राइफल की नाल उसके बाएं कान पर रखी। लम्हा भर के लिए अव्वल खान के हाथ रुके और मैंने राइफल चला दी। खोपड़ी समेत उसका आधा चेहरा उड़कर तारीकी में कहीं बिखर गया। अव्वल खान उसके तड़पते वजूद को छोड़कर तेजी से नीचे उतर गया। बाकी दोनों का क्या बना? अव्वल खान ने हाँफते हुए सवाल किया। दोनों जहां वासिल हो गए। फायरिंग की गूंज में मैंने उसे बताया, गाड़ी में घुस जाओ, कोई भटकी हुई गोली इधर भी आ सकती है। मैंने लपक कर अपनी जगह संभाली और जेब से ऑपरेटर्स निकाल कर ऑन कर लिया। चीफ कॉलिंग AA, ओवर। ऑपरेटर्स ऑन होते मेरे कानों में जलाल की वहशत ज़दा आवाज उभरी। वो जाने कब से मुझे पुकार रहा था। AA ऑनलाइन। मैंने बिला ताखीर जवाब दिया। मैंने अभी अभी ऑपरेटर्स ऑन किया है, हम बदतरीन मुश्किल में फंस गए थे, अब मतला साफ है, ओवर। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी आवाज सुनाई थी। एक गहरे सांस के साथ उसकी आवाज आई। मेरे आदमी सब कुछ देख रहे थे। इन तीनों में से दो अचानक कहीं गायब हो गए। वो दोबारा नजर आए तो तुम्हारी गाड़ी के दोनों दरवाजों पर राइफल ताने हुए थे। इस पोजीशन में इन पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी। लंगड़ा कहीं नजर नहीं आया। तुम तेजी से लौट जाओ, ओवर एंड ऑल। जलाल की गुफ्तगू बहुत मुंतशिर सी थी। उसके मुदाफाना अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो हमारी नागहानी मुश्किल के लिए खुद को जिम्मेदार तस्वुर कर रहा था। अव्वल खान गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुका था। मैंने महसूस किया कि इस पहाड़ी के दामन में होने वाली धुआंधार फायरिंग दम तोड़ चुकी थी। नीचे से की जाने वाली फायरिंग का सिलसिला यकसर मौकूफ हो चुका था। ऊपर से इक्का दुक्का फायर हो रहे थे। अव्वल खान ने मेरे कुछ कहने से पहले गाड़ी सड़क की तरफ घुमा ली। खौफनाक मार्का था। सड़क पर आने के बाद अव्वल खान ने छुरछुरी लेकर कहा। अपने सर पर राइफल की नाल का दबाव महसूस करते मैंने कलमा पढ़ लिया था। वो वाकई जान गुस्सल लम्हात थे। मैंने उसे इत्तिफाक करते हुए कहा। खराबी ये हुई कि हम दोनों ने अपनी सारी तवज्जो सामने से आने वाले पर मरकूज कर दी थी। बकिया दो को भूल गए। आज कुदरत ने हमारा साथ न दिया होता तो काम तमाम हो गया होता। उसे देखना पड़ रहा था। किसी उल्लू के पट्टे की तरह सीना ताने यूं बेखौफ और खतर चला रहा था जैसे अपने ससुराल में आ रहा हो। अव्वल खान की आवाज में झुंझलाहट नुमाया थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं था, मैंने जोर देकर कहा। मुझे शुबा है कि सोबराज ने दोबारा रावालों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वो राह के लिए काम करेगा तो ग्रीन कोबरा फाइल पर खुली सौदेबाजी करके फायदा नहीं उठा सकेगा। वो इसे फाइल की वापसी का मुतालबा करेंगे और उसे झुकना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। हो सकता है कि गुजरात और काठियावाड़ के साहिलों से मशरिक़ वस्ता की तरफ इंसानी स्मगलिंग करने वाला कोई गिरोह बंद हो जो सोबराज से अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ आया हुआ हो।